Jiddu Krishnamurti, the author of On Violence. He was born in May 1895 and died on 17th February 1986. He was an Indian philosopher, speaker, and writer. In the present article, J. Krishnamurti reflects light on the dangers of violence. He is much concerned with its consequences. Violence only kills people and it has no power of creation. It is only destructive. Violence, antagonism, hate, cruelty, ugly criticism, and anger inherent in human beings never allow them to become rational. They are bound to become part of our society, which is based on traditional values. Krishnamurti urges us to adopt a new culture free of violence, hate, and anger and antagonism. He thinks that we can establish a new culture with the help of education. When we are educated, we are free of violence, hate, and antagonism. We have love, affection, and generosity towards others. Our life becomes meaningful and we are able to enjoy the extraordinary bliss of nature. Good morning, students. Today I am going to start with the chapter number 2, that is On Violence. This chapter is written by J. Krishnamurti. There is a great deal of violence in the world. There is a physical violence and also inward violence. Physical violence is to kill another, to hurt the people consciously, deliberately, or without thought, to say cruel things full of antagonism and hate, and inwardly inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people inwardly. We are always quarreling, battling, not only with the others but with ourselves. We want people to change. We want to force them to our way of thinking. First of all, I want to tell you the meanings. There is a great deal of violence. Great deal of means a lot of violence is there in the world. There is a physical violence. Physical violence. Violence is first what? The act of showing force. And physical, that is related to body. Also inward violence. Inward means inside. And now the next meaning is you have given in the third line, that is consciously. Consciously means knowingly. Then deliberately. Deliberately means intentionally, जो जानबूझ के किया जाता है, that is deliberately. Or without thought to say cruel things. Full of antagonism. What is the meaning of antagonism? Feeling of hatred and opposition. हिंदी में हम कह सकते हैं विरोध करना, प्रतिरोध करना. That is antagonism. Now again the word is given here inside the skin. Inside the skin here means by heart, मन से, अंदर से. To dislike people, to hate people, and to criticize people. Criticize means to find fault. What is the meaning of criticize? To find fault. मतलब किसी की आलोचना करना, किसी की कमी निकालना, that is a criticize. And inwardly. Inwardly here means inside, मन ही मन में. We are always quarreling. हम लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं. Battling, same the way. These are the words which are important. I have given the meanings to you. Now come to the point. There is a great deal of violence इस देश के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर. सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या हो रहा है? वायलेंस, हिंसा. देयर इज़ अ फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस. तो शारीरिक हिंसा और आंतरिक हिंसा, अंदर से फिजिकली, जो फिजिकली होते हैं ना रिलेटेड टू बॉडी, बॉडी से चाहे अंदर से, दोनों तरफ से क्या चल रहा है? वायलेंस. फिजिकल वायलेंस क्या होता है? इज़ टू किल एन अनदर, एक दूसरे को मार देना. टू हर्ट पीपल, एक दूसरे लोगों को हर्ट करना. कॉन्शियसली, कॉन्शियसली का मैंने बताया था आपको, नोइंगली, डेलिबरेटली, इंटेंशनली. मतलब कोई भी काम जो जानबूझ के किया जाता है, हम जानबूझ के किसी को हर्ट करते हैं, जानबूझ के हम किल करते हैं, वो होता है फिजिकल वायलेंस.
और विदाउट थॉट हम ये भी नहीं सोचते कि क्या सही है और क्या गलत. टू से क्रूएल थिंग्स, हम ये कह सकते हैं वो चीज़ें जो क्रूएल है, जो बहुत गलत है. फुल ऑफ एंटागनिज्म. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटागनिज्म? फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड अपोजिशन, विरोध करना, एक दूसरे से नफ़रत करना. एंड हेट एंड इनवर्डली, और इनवर्डली वायलेंस क्या होता है? दैट इज़ इनसाइड द स्किन. मतलब बाय हार्ट इफ़ वी आर डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल. इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग, हम हमेशा लड़ते रहते हैं, बैटलिंग करते रहते हैं. नॉट ओनली विद अदर्स, सिर्फ दूसरों के साथ ही नहीं, बट विद आवर सेल्स, हम एक दूसरे के साथ ही नहीं, अपने से भी. वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि लोग बदलें. वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, और हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं वैसा ही लोग सोचें, उनकी थिंकिंग भी वैसी हो. तो कहने का मतलब ये है कि समाज की जो प्रथाओं में हम जकड़े होते हैं, समाज में आप देखते हो कि आप जैसे देख रहे हो कि वैसा ही वो करे जैसे हम सोचते हों, लोग ऐसा ही करें जैसा हमने सोचा हो, हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग रहती है वो वैसा ही करें. तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें आपको बताया है कि व्हाट इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वॉयलेंस इन द वर्ल्ड. थैंक यू. In the world, as we grow up, we see a great deal of violence at all levels of human existence. The ultimate violence is war, the killing for ideas, for so-called religious principles, for nationalities, the killing to preserve a little piece of land. To do that, man will kill, destroy, maim, and also be killed himself. There is enormous violence in the world. The rich wanting to keep people poor, and the poor wanting to get rich, and in the process hating the rich, and you being caught in society are also going to contribute to this. So in the world as we grow up, इस वर्ल्ड के अंदर हम जैसे जैसे ग्रो अप करते हैं, मीन्स हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वॉयलेंस, हम देखते हैं बहुत बड़ी हिंसा एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. मनुष्य के हर कदम पर हम क्या देख रहे हैं? वॉयलेंस. द अल्टीमेट वॉयलेंस, अल्टीमेट मीन्स क्या होता है? अंतिम, जो चरम सीमा पे होता है, दैट इज़ अ अल्टीमेट, फाइनल यू कैन से. वो क्या है? अल्टीमेट वॉयलेंस क्या है? वॉर. और उस वॉर में क्या होता है कि हम लोगों को मारना, उनके विचारों को ख़त्म करना, मीन्स किलिंग फॉर आइडियाज़, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांतों को ख़त्म करना, या फिर नेशनलिटी एंड फॉर अ नेशनलिटी. द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, छोटे छोटी चीज़ों के लिए, जैसे हम अपने लैंड के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए एक दूसरे को मार देना. टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मेम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ. और ये इन सब चीज़ों को बचाने के लिए एक दूसरे को किल कर देते हैं. छोटी छोटी बातों के लिए, लैंड के टुकड़े के लिए हम ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे को किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. मेम का मतलब होता है हम उसको इंजरी देते हैं. कभी कभी तो इसको यूज़ किया जाता है कि शरीर के टुकड़ों तक को भी काट देते हैं. एंड ऑल्सो भी किल्ड हिमसेल्फ, और उसके बाद अपने आप को भी हम ख़त्म कर देते हैं. देयर इज़ एनॉर्मस वॉयलेंस इन द वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है. द रिच वॉन्टिंग टू कीप पीपल पुअर, कैसे? क्योंकि जो रिच लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पुअर लोग जो हैं वो पुअर रहें. पुअर क्या चाहते हैं? रिच बनना चाहते हैं. एंड द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इस प्रोसेस में वो रिच को हेट करते हैं. एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी, और क्योंकि तुम इस सोसाइटी में रहते हो, आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और क्योंकि आप इस सोसाइटी में फंसे हुए हो, उसकी वजह से आप भी इन सब चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो. Now come to the third paragraph. There is a violence between husband, wife and children. There is a violence, antagonism, hate, cruelty, ugly criticism, anger. All this is inherent in man, inherent each human being. It is inherent in you, and education is supposed to help you to go beyond all that, not merely to pass an examination and get a job. You have to educate it so that you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being. And brutal man with a very clever brain
who can argue and defend his brutality. You are going to face all this violence as you grow up. You will forget all that you have heard here and will be caught in the stream of society. You will become like a rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring about a new society, a new world. So come to the lines. There is a violence between husband, wife and children. जो वॉयलेंस है, हिंसा है, वो अगर आपको देखने में आता है तो अभी ये देखा जाता है कि ये वॉयलेंस जो है हस्बैंड में हो रहा है, हस्बैंड से वाइफ को, वाइफ से चिल्ड्रन, तो ये वॉयलेंस आपको रिलेशन में भी देखने को मिलेगा. देयर इज़ अ वॉयलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रूएलिटी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इनहेरेंट इन मैन. तो आप क्या देखेंगी, अब जो हिंसा है, हिंसा जो है उसमें विरोध हो रहा है, घृणा हो रही है, निर्दयता हो रही है, आलोचना हो रही है, तो ये इंसान के अंदर, इट इज़ ऑल दिस इनहेरेंट इन मैन, ये जन्म से ही होता है इंसान के अंदर. इनहेरेंट का मीन्स क्या होता है, इनबॉर्न, नेचुरल चीज़ होती है ये. इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये अपने आप ही होती है. इट इज़ इनहेरेंट इन यू, ये आप में भी है. एंड एजुकेशन इज़ सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट. और एजुकेशन क्या है, ये सब इन सब चीज़ों से आपको दूर रखती है. नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन. हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए और जॉब करने के लिए ही नहीं लेते एजुकेशन. यू हैव टू एजुकेटेड सो दैट यू बिकम अ रियली ब्यूटिफुल, हेल्दी, सेन, रेशनल ह्यूमन बीइंग. हम एजुकेशन किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि हम एक बहुत अच्छे इंसान, ब्यूटिफुल इंसान रहें, हेल्दी रहें, सेन रहें. सेन का अंदर मीन्स द वाइज, और एक रेशनल ह्यूमन बीइंग बने, नॉट अ ब्रूटल मैन. और एजुकेशन लेने का मतलब ये नहीं कि हम एक ब्रूटल मैन बन जाएं. ब्रूटल का मीन्स क्या होता है, जो वॉयलेंट होता है, क्रूएल होता है. क्रूएल मैन नहीं बनना है हमें एजुकेशन लेने का मीन. विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटलिटी. और एक ब्रूटल मैन क्या होता है, वो बहुत क्लेवर इंसान होता है, वो अपने आर्ग्यू से डिफेंड करता है कि मेरी जो ब्रूटलिटी है, मतलब वो अपनी आर्ग्यू से अपनी ब्रूटलिटी को बनाए रखता है. वो रेशनल इंसान नहीं बन पाता, जिसका मतलब चालाक दिमाग होता है, जो आर्ग्यू करते के बाद वाद विवाद करता है और क्रूरता को बचा सके, अपने ब्रूटलिटी को बचा सके, उसके लिए आप बड़े मतलब आप ये ब्रूटल इंसान ऐसा होता है. सो यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वॉयलेंस एज यू ग्रो अप. और आप इन सब वॉयलेंस को फेस करोगे जब आप ग्रो अप होंगे. यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर. और आप सब भूल जाओगे जो आपने ये सब सुना है. एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी. और आप भी क्या करोगे, एक जैसा सोसाइटी चल रही है उसी के साथ आप चलने लग जाओगे. यू विल बिकम लाइक रेस्ट ऑफ द क्रूएल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वॉयलेंट वर्ल्ड. एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड. और क्योंकि अगर आप इन्हीं की तरह क्रूएल रहे, हार्ड रहे, बिटर रहे, एंग्री रहे, वॉयलेंट रहे, तो आप भी इसी वर्ल्ड के अंदर चले जाओगे. आप कभी भी अपना एक नया सोसाइटी, अपना नया वर्ल्ड नहीं बना पाओगे.